حسن حسن جو بے نقاب آیا، زمین پر عرش سے حسن حسن جو بے نقاب آیا، پسینے آئے پھولوں کو ستاروں کو حجاب آیا، سبحان اللہ سبحان اللہ، منور ہو گئی دنیا، وہ جلووں کا شباب آیا، منور ہو گئی دنیا، وہ جلووں کا شباب آیا، فلک پر آفتاب آیا، زمین پر ماہتاب آیا، سبحان اللہ، اور حسین آئے حسین آئے، یوں ہی تا حضرت حجت، حسین آئے حسین آئے، یوں ہی تا حضرت حجت، محمد کے گھرانے میں جو آیا لاجواب آیا، واہ 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 سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جیتی رہی ہے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اور جہاں میں رہنے والوں ناز کر لو اپنی قسمت پر، بے شک، واہ واہ واہ، جہاں میں رہنے والوں ناز کر لو واہ واہ واہ، اپنی قسمت پر، واہ واہ واہ، خدا شاہد زمین پر اہل جنت ہائے ہائے ہائے، شباب، واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، شاہد زمین پر اہل جنت کا شباب آیا، اور بلندی جس کی لفظوں میں بیاں ہو ہی نہیں سکتی، بلندی جس کی لفظوں میں بیاں ہو ہی نہیں سکتی، واہ واہ، بے شک نہیں ہو سکتی، قسم دوش پیغمبر کی کہ وہ آیا جناب آیا، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، قسم دوش پیغمبر کی جیتی رہی ہے، اوہ اوہ، کہ وہ آلی سبحان اللہ، واہ واہ جناب واہ، آیا، زمین پر عرش سے حسن حسن جو بے نقاب آیا، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، جزاک اللہ خیر میری بہن رباب۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ اللہ کی محبت چاہتے ہو تو مجھ سے محبت کرو، اور مجھ سے محبت چاہتے ہو تو اہل بیت سے محبت کرو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 15 رمضان المبارک 1438 ہجری، آج کا دن 15 رمضان حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم ولادت، تمام امت مسلمہ کو بہت مبارک ہو۔ سنڈے کا دن 11 جون 2017، آج کے دن وہ بات یاد آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پرورش پانے والے سیدنا امام حسن بن علی کا یوم ظہور، اور مولا علی اور فاطمہ الزہرا کے بڑے صاحبزادے امام حسین علیہ السلام کے بڑے بھائی امام حسن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ میرا بیٹا سردار ہے،
یہ میرا بیٹا سردار ہے اور امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذریعے مسلمانوں کے 2 گروہوں کے درمیان صلح کروا دے گا۔ خواتین و حضرات، آج کا دن آپ سب لوگوں کو بہت مبارک ہو۔ اس ٹرانسمیشن کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ رمضان عشق ہے نشریات میں آج بھرپور دعائیں ہوں گی، لیکن اس کے ساتھ 2-3 جو میرے ذہن میں باتیں ہیں، میں علماء کرام سے تھوڑی دیر بعد انشاءاللہ سرورت آپا، رحمانی بھائی اور شہنشاہ بھائی بھی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ میں بات کروں گی ان ہستیوں کی تربیت کی، میں سوال کروں گی کہ اتنی محبت ہمیں کیوں ہے؟ ایسی محبت جاگتی ہے جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسوں کا نام لیتے ہیں تو اندر سے ایک ایموشنل سی کیفیت ہو جاتی ہے کہ یا اللہ، کہ جب ایک واقعہ کہ آپ کی پیٹھ پر سوار تھے، بے شک، تو سب نے کہا کہ دیکھو بھائی واہ کیا خوبصورت سواری ہے، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوار بھی تو کتنا خوبصورت ہے۔ تو یہ محبت اللہ پاک ہم سب کو امت مسلمہ میں جتنی بھی نسلیں آنے والی ہیں، مالک پروردگار ہم میں یہی محبتیں دے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ آج کی نشریات تھوڑا سا آہستہ کر دیجیے گا، آج کی نشریات کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ آپ لوگوں سے ضرور باتیں ہوں گی۔ ہمارے پینلسٹ میں آج اس وقت موجود مفتی نور رحمانی بھائی ہمارے ساتھ، راجہ بھائی ہمارے ساتھ، سرورت آپا ہمارے ساتھ موجود، اور ڈاکٹر عمیر حائل اور میری بہن رباب۔ آپ سب کو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ساتھ ساتھ اجازت کے ساتھ یہ بھی بتاتی چلوں کہ آج کا دن پچھلے سال 2016 کو ہم سب کے بھائی، ہم سب کی جان، میں اپنے گڈے بھائی پر قربان جاؤں، ان کی ہمارے ساتھ آخری ٹرانسمیشن تھی لائیو، اور آج کے دن کی اتنی یادیں ہیں، اتنی خوبصورت یادیں ہیں۔ آپ نے آج کے دن پر کلام پڑھا امجد بھائی نے، ساتھ اتنی یادیں، افطار، باتیں۔ میں اس طرف پہنچ جاؤں اگر اجازت ہو؟ اور آج کے دن کو ہم کل یاد کر رہے تھے، ہم کہہ رہے تھے کہ ہم نے کیسے آج 15 شعبان منائی تھی، 15 رمضان بنائی تھی، اور جزاک اللہ، اور امجد بھائی اور سب لوگ مل کر آپ لوگ کتنا کلام پر جھومے تھے اور خوش ہو رہے تھے اور دن منا رہے تھے، خوشیاں منا رہے تھے۔ اور پیدائش بھی رمضان میں ہوئی، شہادت بھی رمضان میں ہوئی، اور ان کو یہ دن منا کر جانا تھا۔ دیکھیں تو صحیح بات، ان کو یہ دن منا کر جانا تھا۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسوں کا ذکر ہوتا تو جھوم اٹھتے، اور جب رحمانی بھائی ذکر، یہ حسان کوئی کلام پڑھے، فرحان کوئی کلام پڑھے، جھوم اٹھتے، وہ مجھے آنکھوں میں قید ہے۔ لیکن آج تھوڑی دیر بعد ہمارے ساتھ میری بھابھی نادیہ بھابھی، میرے ساتھ بیٹا چوم لیجئے گا، نادیہ بھابھی میرے ساتھ، میرے بھتیجے بھتیجیاں میرے ساتھ ہوں گے، ان کے بچوں میں مجدد، حورین، پریسا، موہب علی اور اون محمد، یہ ہمارے ساتھ ہوں گے آج کے دن انشاءاللہ۔ آپ سب لوگوں کی شرکت کا بہت شکریہ۔ یہ یادیں دیکھ رہے ہیں، آپ لوگ، آن اسکرین جو اس وقت نظر آ رہی ہیں، ان نارمل ڈیز میں تو آئیں گے ہی ذکر ہوگا، لیکن رمضان کے دنوں کی، رمضان کے کلاموں کی، رمضان کی افطاری کی، رمضان کے سحری کی، رمضان کے خاص ولادتوں کی، شہادتوں کی، کون سا دن ہم نے ساتھ نہیں گزارا۔ ہر دن کی مناسبت سے ذکر ہو، بات ہو، کلام پڑھا جائے، مل کر سب پڑھیں۔ میں کچھ کہنا چاہتی ہوں مایا، کیونکہ مسلسل استقبال ماہ رمضان سے ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں اور ہم مختلف چینلز پہ کام کر رہے ہیں۔ آپ یقین کیجئے مجھے 50 لوگ ایسے مل چکے کہ جو کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ ہو رہا ہے، ویسے ہی ہو رہا ہے، لیکن
उस एक शख्स की कमी बहुत महसूस हो रही है। बेशक यानी हमेशा रहेगी, हाँ, उनकी कमी कोई नहीं पूरी कर सका। कोई नहीं कर सकता, वो रौनक कोई पूरी नहीं कर सकता। मैं ज्यादा रमानी भाई की तरफ इसलिए नहीं देख रही क्योंकि इनको यहाँ पर लॉक करने वाला, मोहब्बत से लॉक, हमारे पास ना दौलत है ना हमारे पास कोई दुनिया की लालच, लेकिन मोहब्बत से लॉक करने वाला वो शख्स इनको यहाँ छोड़ गया कि भाई तू याद रख, तूने अगले साल कहीं और नहीं जाना, तो ये बता दे, तू ये डॉन है, बता रहा हूँ तुझे, ये अंदाज मोहब्बत का, मनवाना, अपनी बात मनवाना। हाँ, और भाइयों की तरह कहाँ जा रहे हो भाई, तुम कहाँ जा रहे हो आप? अरे यार मुफ्ती साहब क्या हो गया आपको यार, आप अपना शो छोड़ के जा रहे सही हैं? बात। ऐसे ये अंदाज नहीं ये, अरे अपना छोड़ के जा रहे हैं, क्या हो गया आपको? अरे अमजद भाई जाना है मेरा, दूसरी जगह है, कहते हैं इसको आप ही, मुझे भी आप ही ना, मैंने कहा आपसे तो छोटा तो कोई है ही नहीं ना पूरे दुनिया में, मैं तो पक्की आप ही बन गई हूँ। कहते क्या करूं, आज आइए मिलकर इस दिन को मनाते हैं, हर तरह से मनाते हैं, मोहब्बत में मनाते हैं, खुशियों से मनाते हैं, लेकिन अमजद साबरी आज का दिन मैं आखिरी लाइव ट्रांसमिशन की थी, आते सफ़े के बाद हमारे साथ रहेगा। जब वक्त नज़र आए आका दीदार अता करना, मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा। इख्तिलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती, फूल भी खिल उठते हैं कि जो इख्तिलाफ जाती मुफाद से बढ़कर इज्तिमाई नफ़े की खातिर बुलंद होता है, कौमें उसी की रोशनी में आगे बढ़ा करती हैं और सर बुलंद होती हैं। मेरी कौम इस दुनिया में खूब सर बुलंद हो, ये मेरा मसला है जिसके हल की खातिर अरबाबे इख्तियार के नाकिस फरमानों और फैसलों पर मेरा हाथ खुद ब खुद कलम की जानिब बढ़ जाता है और मैं लिखता हूँ इख्तिलाफी नोट। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट जुम्मा से इतवार रात 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं,
बिगड़ती है, लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा @8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा @8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका, कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा किया। एक भरपूर सहाफ़ती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास तो आपकी किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दमाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा, इस मुल्क की तो ये स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। रमजान इश्क नशरियात में एक बार फिर करते हैं आपको खुश आमदीद। आप मेरी प्यारी फैमिली के साथ सदा मौजूद हैं बराह रास्त 24 न्यूज़ HD पर। थोड़ी देर बाद इंशाल्लाह नादिया भाभी और मेरे भतीजे भतीजी इस वक्त यहाँ पर होंगे आप लोगों के साथ। लेकिन उससे पहले मैं कहूँगी कि मैं सरवत आपा के पास आऊँ, मैं राजा भाई के पास आऊँ, मेरे रहमानी भाई के पास आऊँ और मैं कहूँ आज का दिन इतना प्यारा दिन, इतना खूबसूरत दिन, इतनी खूबसूरत यादें हमारी भी आज के दिन से जुड़ी हुई। हम सब थोड़ी एक कैफियत में आ गए थे, लेकिन अब क्या करें, आज का दिन जिसने उनके साथ गुजारा और आज के बाद की 16 की सहरी जहां उन्होंने दूसरे इदारे में गुजारी, आज के दिन क्या क्या बातें हुई थी अमजद भाई से वो तमाम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। लेकिन आज का दिन इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत का दिन, आपको मुश्तबा का खिताब मिला, क्यों मिला? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम तमाम नाज़रीन भी और जितने ऑडियंस यहाँ पर मौजूद है, आपको आपकी पूरी टीम को मैं विलादत इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम की मुबारकबाद देती हूँ और इस दुआ के साथ मुबारकबाद देती हूँ कि परवरदिगार आलम मेरी और आपकी इस हाज़री को, इस कबूलियत को, इस जिक्र को, इस फिक्र को, इन अल्फाज को मकबूल बारगाह फरमा दे। और इंशाअल्लाह ताला अगर हमारे ये अल्फाज बारगाह मोहम्मद वाले मोहम्मद पे कबूलियत के दर्जे पर पहुँच जाते हैं तो ये दुनिया की आखिरत भी समर जाएगी। और जैसा कि आज मैं और आप इस वक्त अमजद साबरी भाई की बातें कर रहे हैं तो जहन में ये सवाल पैदा होता है कि सना खान तो बहुत गुजरे हैं, जिक्र करने वाले बहुत गुजरे हैं, लेकिन अमजद भाई की मोहब्बत लोगों के दिलों में क्यों इस कदर आ गई? तो यकीनन ये अहले बैत अतहार की मोहब्बत है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके पाक घराने की मोहब्बत जिसके भी दिल में आ जाए तो परवरदिगार आलम उसे ऐसी ही इज्जत अता करता है कि शहादत की मौत अता करता है। तो वाह, बड़ी प्यारी बात की आप। माया, मैं आज इमाम हसन मुश्तबा सब्ज़ अलैहिस्सलाम के यौम विलादत पर और क्या कहूँ कि ज़हरा का चांद इब्ने अली मुस्तफ़ा का नूर, ज़हरा का चांद इब्ने अली मुस्तफ़ा का नूर, ये वो अजीम शख्सियत है कि जो मौलाए कायनात और जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के घर में आप पैदाइश हुई और आप परवान चढ़े और तारीख़ आदम व आलम के ये वो पहले इंसान हैं जो कि मासूम वालिदैन के ज़रिए दुनिया में तशरीफ़ लाए। और जैसा कि अभी आपके इंट्रोडक्शन में भी बताया गया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस वक्त मक्के की सरजमीन पर ऐलान रिसालत फरमाया
اور آپ نے کہا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو لا الہ الا اللہ تاکہ فلاح کی، کامیابی کی، نجات کی منزلوں پر گامزن ہو سکو. تو وہ مشرکین اور کفار مکہ کے جنہوں نے ایک لشکر احزاب آپ کے مقابل میں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابل میں ترتیب دے دیا تھا، اور وہ ہر طریقے سے دامے درمے قدمے سخنے ہر طریقے سے درپے آزار تھے. تو اس میں ایک بہت بڑی اذیت یہ دی گئی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹوں کی وفات ہوئی تو ان بدبختوں نے کہنا شروع کیا آپس میں ایک دوسرے سے کہ نعوذ باللہ من ذالک، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، محمد تو ابتر ہو گئے، یعنی اب ان کا کوئی نام و نشان باقی نہ رہا. قلب نازک پر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب نازک پر چوٹ لگی، آنکھوں میں آنسو آ گئے. پروردگار سے فرمایا کہ تیری مصلحت میں زبان یارائے کلام تو نہیں، مگر میرا یہ مقام بھی نہیں کہ یہ مجھے ابتر کہتے پھرے. بس رحمت پروردگار کو جوش آیا اور سورہ کوثر کا نزول ہوا. انا آتینک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. اور یہ وہ مختصر ترین سورہ کی جس کے نہایت اجر و ثواب، جس کے نہایت فضائل، لیکن ایک بڑی خصوصیت اس سورہ کی یہ ہے کہ اس سورہ کو دروازے خانہ کعبہ پر آویزہ کیا گیا اور چیلنج دے دیا گیا کفار اور مشرکین سے کہ اگر ہو سکے تو اس کا جواب لے آؤ. اور یہ سورہ جو کہ 3 برس تک دروازے خانہ کعبہ پر آویزہ رہی، اور اس کے بعد یہ تمام کفار اور مشرکین سر پٹک کر رہ گئے کہ ما ھذا کلام البشر، یہ کسی انسان کا کلام نہیں، یہ خالق انسان کا کلام ہے. تو کوثر کا نزول ہوا، اور کوثر کا نزول کس صورت میں ہوا کہ ذی الحج میں جناب فاطمہ الزہرا اور مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا عقد ہوا، اور اس کے بعد رمضان کی 15ویں تاریخ کو سورہ کوثر کی عملی تفسیر بن کر امام حسن مجتبی علیہ السلام کی ولادت ہوئی خانہ عصمت و امامت میں. اور اس کے بعد طویل روایات ہیں، اگر آپ کہیں تو وہ بھی اگر وقت کی گنجائش ہے تو عرض کروں کہ روایت یہ کہتی ہے کہ جب امام حسن مجتبی علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو اسما بنت امیس نے سفید پارچے میں لپیٹ کر اس معصوم بچے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش میں لا کر دیا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس بچے کا نام جنت سے آیا ہے، اس بچے کا نام اللہ تعالیٰ نے خود تجویز کیا ہے، اور اس بچے کا نام حسن رکھا جائے. اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے دائیں کان میں اذان دی اور بائیں کان میں اقامت دی، اور امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہ رسم چل پڑی کہ جب بھی کسی کے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہو، مسلک کی کوئی قید نہیں، کوئی تفریق نہیں، دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت. اور اس کے بعد اگلی جو سنت محمدی کی بنیاد پڑی کہ آپ نے امام حسن مجتبی علیہ السلام کا عقیقہ سر انجام دیا، اور اس کے بعد یہ رسم بھی آگے چل پڑی. اور اس کے علاوہ آپ نے امام حسن مجتبی کے بالوں کو اتروایا اور اس کے برابر کی چاندی کو صدقہ دیا، خیرات کیا. تو یہ بھی امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سنت و روایت چل پڑی امام حسن مجتبی علیہ السلام کے حوالے سے. میں کہتی ہوں یہ عصمت و ہدایت کا گھرانہ ہے، یہ امامت کا گھرانہ ہے، یہ شریعت کا گھرانہ ہے. اس گھر میں کتاب اتری، یہ نور کا گھرانہ ہے. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. تو اس عظیم گھرانے میں جو بچہ پرورش پائے گا، جو بچہ تربیت پائے گا، وہ بچہ کس شان کا ہوگا، وہ حسن کس شان کی ہوگی. کہ روایت کی کہتی ہے کہ عالم کمسنی میں امام حسن مجتبی علیہ السلام جن کے کان بچپن سے مانوس تھے کہ آپ کے کانوں میں اپنی والدہ گرامی کی جو پوری رات عبادت الہی میں مصروف رہتی تھی، مصلی عبادت پر تضرع کیا کرتی تھی، گریہ وزاری عبادات اور مناجات کیا کرتی تھی، آپ کی کان سنا کرتے تھے. ایک روز عالم کمسنی میں چھوٹا سے بچے نے پوچھا، کہا کہ اماں جان ایک ایک کا نام لے کر دعائیں کرتی ہیں، اماں جان سب کے لیے دعائیں، دوسروں کے لیے دعائیں. ماں جو کہ شہزادی کونین ہے، رسول کی بیٹی ہے، ماں نے فرمایا، کہا بیٹا حسن دعاؤں میں بھی پہلے دوسروں کا حصہ ہوتا ہے. آج کی ماں کے لیے یہ لمحے فکریہ ہے. آج کی عورت جو کہ آج کی ماں سے آج کی عورت جو کہ پریکٹیکلی اپنے بچوں کو یہ تعلیم، یہ تربیت دیتی ہے کہ جو کچھ ہے وہ ہمارا ہے یا میرا ہے، میرے بچوں کا ہے، جو کچھ بھی وہ اس گھر میں ہماری ملکیت ہے. لیکن در اہل بیت سے ہی سبق دیا جا رہا ہے کہ اگر دعائیں بھی دو تو اس میں پہلے دوسروں کا حصہ ہے. تو یہ وہ گھرانہ ہے کہ روزے پہ روزہ رکھتے تھے اور روٹیاں خیرات کیا کرتے تھے. یتیم دروازے پر آیا، مسکین دروازے پر آیا، اسیر دروازے پر آیا، پانی سے روزہ افطار کرتے گئے. اور
इस दर से साइल खाली हाथ वापस ना सुभान किया। अल्लाह, क्या क्या बात नहीं पूछूं, किस किस हवाले से सवाल ना करूं रहमानी भाई। अहादीस भरी पड़ी है तालीमात से। आप वाक़यात जब बयान करते हैं, आप लोग आते हैं, ऐसा जाके दिल और रूह पर जाकर लगता है। अहादीस में कितनी बार कितनी मोहब्बत भरी, गाऊंगी रहमानी भाई आप। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल लेवल करीम, बढ़ा अम्मा बाद, दीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, अल्लाहु यज्तबी इलैहि मन यशा व यहदी इलैहि मन युनीब। वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल हसन वल हुसैन सय्यद शबाबी अहलिल जन्नह, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल करीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए और दुरूद व सलाम अल्लाह के रसूल, हम सब के आका, हम सब के मौला हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब आपका पहला सवाल था कि इन्हें मुश्तबा क्यों कहा जाता है। जी, सबसे पहला सवाल है। अब आइए कुरान से पूछते हैं, कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद, सिब्त अकबर जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे बड़े नवासे हैं, जिनको मेरे आका फरमाते थे, इब्नी हाज़ा सैयद, ये मेरा बेटा है, हाज़ा सैयद, और ये मेरा सरदार, ये सरदार है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनको मुश्तबा क्यों कहते हैं? कुरान कहता है अल्लाहु यज्तबी इलैहि मन यशा, अल्लाह चुनता है इस पूरी कायनात में से। अंबिया को अलग किया, अंबिया को अलग करने के बाद सारे अंबिया में से अल्लाह ने मेरे मुस्तफ़ा को चुना, और मुस्तफ़ा का मतलब होता है चुना हुआ। वे सारी मखलूक को एक तरफ किया और मखलूक में से हसन को निकाला और नाम रखा मुजतबा, ये भी चुना हुआ है। वो नबियों में चुना हुआ है, ये साबिरों में से चुना हुआ है, ये शाकिरों में से चुना हुआ है, ये आबिदों में से चुना हुआ है, ये जाहिदों में से चुना हुआ है। जो कुरान की सिफात है, अल्लाह ने मेरे हसन को उससे चुना हुआ है। हाय सुभान अल्लाह, सुभान ये कुरान मजीद अल्लाहु यज्तबी इलैहि मन यशा। अब आइए वो आपका सवाल कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या वो हदीसें, आका ने ये फरमा दिया, इब्नी, ये मेरा बेटा, मेरा बेटा, हाज़ा सैयद, ये सैयद है, अन युस्लिहा बिही, और ये सुलह करवाएगा उस वक़्त जब फितना और फसाद चल रहा होगा। मसरत भी इसकी होगी, हक भी इसकी होगी, ताकत भी होगी, शुजात भी होगी। शुजात क्यों ना हो, शेर खुदा का बेटा है। तरबियत, भाई आज मैं यहाँ बैठा हूँ इसके लिए बैठा कि मैं किसका बेटा हूँ, बल्कि ये देखा जाएगा कि मेरा उस्ताद कौन है, जिससे मैंने पढ़ा होगा। अगर मैं काबिल तारीफ हूँ तो मेरा उस्ताद कितना काबिल तारीफ होगा। कुर्बान जाऊँ इमाम हसन की तरबियत ली है पहले मुस्तफ़ा से। 6 साल 4 महीने जो इंस्टीट्यूट है उसका नाम है मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और दूसरे बात जो उनके उस्ताद हैं नाम है मुर्तज़ा, और तीसरे उस्ताद हैं नाम है फातिमुज़ ज़हरा, सुभान अल्लाह, और जो क्लास फेलो है नाम है हुसैन, अल्लाह, और जो सीनियर है नाम है हसन। अभी आप हदीस रसूल पे इंशाल्लाह ब्रेक के बाद मैं बिल्कुल मैं यही हदीस में चाहता हूँ असदुल गाबा की, और दूसरी आज सुना दें बस, जो है ना वो आप वो जो एक कसक फील में हो रही लग रही है ऐसे, बस आज बता दें बहुत बस दिल खोल के। लेकिन कुछ वाक़यात ना वक्त ना जिंदगी इस काबिल है कि ना जिक्र हो सकता है मुकम्मल, ना बात हो सकती है मुकम्मल, नस्लें भी ख़त्म हो जाएं तब भी वो बात नहीं हो सकती हमारी मुकम्मल। बस हो सकता है तो उनका जिक्र हो सकता है। इस वक्फे के बाद हमारे साथ रहेगा आज 15 रमज़ान। इस वक्फे के बाद पहले किसी का नहीं रखा गया आपका लक़ब मुज्तबा और कुनियत इख्तिलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती, फूल भी खिल उठते हैं कि जो इख्तिलाफ जाती मुफाद से बढ़कर इज्तिमाई नफ़े की खातिर बुलंद होता है, कौमें उसी की रोशनी में आगे बढ़ा करती हैं और सर बुलंद होती हैं। मेरी कौम इस दुनिया में खूब सर बुलंद हो, ये मेरा मसला है जिसके हल की खातिर अरबाबे इख्तियार के नाकिस फरमानों और फैसलों पर मेरा हाथ खुद ब खुद कलम की जानिब बढ़ जाता है और मैं लिखता हूँ इख्तिलाफी नोट। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट जुम्मा से इतवार रात 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में।
पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शबाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के ज़माने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी ज़िंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा @8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा @8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका। कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा किया। एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बात की किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाए हैं। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा। इस मुल्क की तो यही स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्ज़ों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वज़ारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर, डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है, उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? UN में 14 साल बाद पाकिस्तान के किसी सरबराह ने खड़े होकर कश्मीर पे जोर मचाया। कुलभूषण का नाम नहीं लिया। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफ राय पीर ता जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर।
सड़कों पर ना घसीटा तो मेरा नाम शबाज शरीफ नहीं। वेरी फनी। इन ऐवानों को गिरा दो। हमेशा हुकूमत के रिंग पे स्टैंड बैठ गए हुए हैं। और कोई शर्म होती है और कोई हया होती है। ख़वातीन हज़रात, एक बार फिर हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। आज का दिन तमाम उम्मत मुस्लिमा को बहुत मुबारक हो। बड़ी प्यारी बात है कि आपकी तरबियत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाई। बेशक ऐसा ही है। और यही वजह है कि तक़वा का आला मकाम भी। मैं अभी वक्फे में भी हम बात कर रहे थे और हम ये कह रहे थे कि हम कैसे इस वक्त में इतनी सारी बातें जो हमारे हैं हम सुनना चाहते हैं आप लोगों से, कैसे सुने इतने से वक्त में। लेकिन वही वाली फिर बात आती है कि ऐसा कौन सा लम्हा हो जब आपका जिक्र ना हो, अल्लाह, ऐसा कौन सा दिन हो जब आपकी बात ना हो। और अल्लाह ना करे कभी ऐसा कोई लम्हा हो और ज़िंदगी का ऐसा कोई दिन हो जब आपकी और अहले बैत की बात ना हो। और कौन सा वो लम्हा होगा कि जो लम्हा कबूलियत का हो। आमीन सुम्मा आमीन। हमारी जुबान से निकला हुआ कोई लफ्ज बारगाह अहले बैत में रसूल और आले रसूल में कबूल हो जाए तो मेरी और आपकी दुनिया भी बन जाए और आखिरत भी बन जाए। आमीन सुम्मा। बेशक 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 बेशक। रमानी भाई आपकी बात मैंने बीच में कहा। अच्छा, मैं जब आपने ये बात करी अभी के तरबियत के हवाले से, 5 साल का बच्चा यहाँ बैठा है, 6 साल के बच्चे यहाँ बैठे हैं। आप मुझे एक बात बताइए, क्या 50 साल का आदमी इनकी बातों पे यकीन करेगा? कोई खबर दें, हैं? ये बात की नहीं करेगा ना भाई, तो छोटे हैं। कुर्बान जाइए इमाम हसन पर। काला इमाम हसन समीत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दआ मा युरिबुक इला मा ला युरिबुक औ कमा काला अलैहि सलातु वस्सलाम। हदीस रसूल बयान करते हैं तो अकाबिर सहाबा आके सुनना शुरू कर देते हैं। अल्लाह, बड़े बड़े असहाब रसूल खड़े हो गए कि कहने बच्चा नहीं है बल्कि रसूलुल्लाह का नवासा है। ये रसूलुल्लाह का नवासा जिसको रसूल ने कहा सिब्ते अकबर, ये मेरा बड़ा नवासा है। ये वो नवासा इसके बारे में रसूल ने फरमाया इब्नी, ये मेरा बेटा है। जब खड़े होकर बयान करते हैं तो बड़े बड़े अकाबिर सहाबा लिखना शुरू कर देते हैं। वो जानते हैं जबान हसन की है, अल्फाज मुस्तफ़ा के हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये अंदाज है। और मुझे वो वाक़या याद आ जाता है कि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाते हैं असदुल ग़ाबा के अंदर। इसको रिवायत किया है मुहद्दिसीन ने। घर के अंदर तशरीफ़ लाए इमाम हसन इमाम हुसैन। कुर्बान जाऊँ हसनैन करीमन आप पर कि आपको खिलाने के लिए मेरे मुस्तफ़ा आते हैं, आपका दिल बहलाने के लिए मेरे मुस्तफ़ा आते हैं, लेवल बढ़ा दीजिए। जिन पर कुरान नाजिल हुआ है वो तशरीफ़ लाते हैं। और दोनों को सीने से लगा लिया और इन बच्चों से कहा कि हम तुम्हें आज कुश्ती कराएंगे। सही है। अभी भी फातिमा देख रही हैं कि आज मेरे बाबा तशरीफ़ लाए और कुश्ती करा रहे हैं। अच्छा, आप इमाम हसन से मुखातिब हैं। हसन यहाँ से, हसन वहाँ से, यानी कि इस तरह ये जो है क्या कहते हैं उसको कुश्ती में दाव। ये दाव लगाओ, हसन यहाँ से दाव लगाओ, हसन वहाँ से दाव लगाओ। बीबी फातिमा कह रही है बाबा जान आप सिर्फ हसन से ही कह रहे हैं, हुसैन से नहीं कह रहे। अभी जुमला सुनिएगा कि आप सिर्फ हसन से कह रहे हैं, हुसैन से नहीं। आपने फरमाया कि जिस तरह नबियों का सरदार हसन का साथ दे रहा है इसी तरह फरिश्तों का सरदार जिब्राइल हुसैन का साथ दे रहा है। मैं यहाँ से कहता हूँ हसन यहाँ से, तो जिब्राइल कहते हैं हुसैन वहाँ से। तो इनको खिलाने के लिए कभी फरिश्तों के सरदार आते हैं, तो कभी नबी रहमत मुहतशम रहमतुल्लिल आलमीन हुज़ूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और कुरान की अमली तफसीर। और कुर्बान जाऊँ इनके खादिम भी कि जो कुरान जानते हैं। आज तो बड़े बड़े लोग कुरान नहीं जानते, मगर जो इनका गुलाम हो जाता है वो भी कुरान खाना खा रहे हैं। एक रवायत में सैयदना इमाम हसन भी हैं और इमाम हुसैन भी हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा मौजूद हैं। सामने से गुलाम आ रहा है, उसके हाथ में सालन की पूरी ट्रे है और सालन इमाम हसन पे गिर जाता है। मुझ जैसा आदमी होता जो कम ज़र्फ होता तो एक हो सकता है एक तमाचा एक थप्पड़ रसीद करता, पर वो अली के बेटे हैं, वो फातिमा के बेटे हैं, वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हैं कि जहाँ से तरबियत हासिल की है। अभी सिर्फ देखा है आपने गुलाम, आपका गुलाम कुरान की आयत पढ़ता है वल काज़िमीन अल गैज़, वो जो गुस्से को पी जाते हैं। गुलाम ने ये बात की है वल काज़िमीन अल गैज़। इमाम हसन ऐसा देखा, कहा गुस्सा पी लिया। फिर गुलाम ने अगली आयत पढ़ी वल आफीना अनिन नास,
وہ جو لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، آپ نے فرمایا معاف کر دیا. پھر غلام نے اگلی آیت پڑھی واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت فرماتا، کہا تمہیں آزاد کیا. قرآن مجید فرقان حمید. مایا یہ وہ روایت ہے جو کہ ہمارے کئی ائمہ طاہرین علیہ السلام کے حالات زندگی میں ملتی ہے. امام حسن مجتبیٰ کے حالات زندگی میں بھی یہ روایت ہے، امام زین العابدین علیہ السلام کے حالات زندگی میں بھی یہ روایت ہے. صاحب معرف القرآن نے، صاحب کاشف الغمہ نے اس کو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے حالات زندگی میں بھی اس روایت کو لکھا ہے. تو یہ وہ گھرانہ ہے کہ جس کے لیے امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ صغیرنا و کبیرنا سواؤن. دیکھو اپنے گھروں کو ہمارے گھروں سے موازنہ نہ کرنا، مطابقت نہ کرنا. تمہارے گھروں میں بچے بچپن میں کھیل کود کیا کرتے ہیں، جوانی میں لہو و لعب کیا کرتے ہیں، بڑھاپے میں نماز روزہ کر کے آخرت کی تیاری کیا کرتے ہیں. ہمارے جو گھرانے ہیں اس میں بچے سے لے کر بوڑھا تک تمام کے تمام قائم اللیل ہوتے ہیں، صائم النہار ہوتے ہیں. یعنی راتوں کو عبادت میں دن کیا کرتے ہیں اور دن کو روزے میں. عرض کرنا چاہتا ہوں آقا کریم قرآن کی آیتیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. جب قل کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو کوئی خاص بات ہوتی ہے قرآن میں. قرآن کلمات کس کے؟ اللہ کے. جملے کس کے؟ اللہ کی. باتیں کس کی؟ اللہ کی. لیکن جب قل کا استعمال کر دیا تو کوئی خاص بات ہے. وہ خاص بات کیا؟ اے حبیب آپ کہہ دیں. انداز کیا رب کا؟ اے حبیب آپ کہہ دیں ان کنتم تحبون اللہ، یہ اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں، فاتبعونی تو انہیں چاہیے بس یہ آپ کی اتباع کریں. اب کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ان کو حبیب بنا لے گا. اللہ اب ان کا دوست بن جائے گا. پہلے یہ اللہ کے دوست بننا چاہتے تھے، مگر جیسے ہی آپ کی اتباع کی اب اللہ ان کا دوست بن جائے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ، تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا. اور یاد رکھیے گا اتباع کے اندر اتباع کامل ہے. اور نبی علیہ السلام کی اتباع میں سب سے پہلی چیز ہے محبت. تو نبی نے جس سے محبت کیا آپ اس سے بھی محبت کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی بھی بخشش و مغفرت فرما دے گا. سبحان اللہ. ایک چیز اور میں آپ ایک ذہن میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں. ایک بڑا عجیب معاملہ ہے. فتبعونی کا معاملہ ہوتا ہے سیرت کی اتباع کرنا. ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ جی ہم تو جنت میں ان کے ساتھ رہیں گے. ارے امام حسن جہاں جہاں ہوں گے ہم وہاں وہاں ہوں گے. یہ جملہ ادا کیا جاتا ہے. مگر بات جیسے ہی عمل کی آتی ہے تو یہ جملہ ہوتا ہے ارے وہ کہاں اور ہم کہاں. یہ بات آ جاتی ہے وہ کہاں اور ہم کہاں. سمجھانے کے لیے تو آئے ہیں. جبھی تو میں قرآن کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول تمہاری رول ماڈل ہیں. اب رسول نے بھی کئی رول ماڈل چھوڑ دیے. صبر دیکھنا ہے تو حسن کا دیکھ لو، صبر دیکھنا ہے تو حسین کا دیکھ لو، شجاعت دیکھنی ہے تو علی کی دیکھ لو، اور اچھی زندگی گزارنی ہے بیوی بن کے دیکھنا ہے تو فاطمہ کو دیکھ لو، شوہر کو دیکھنا ہے تو علی کو دیکھ لو، بیٹوں کو دیکھنا ہے تو حسن حسین کو دیکھ لو، بیٹی کو دیکھنا ہے تو زینب کو دیکھ لو. پورا ایک گھرانہ تشکیل دے دیا. ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی اتباع کریں، ان کی اطاعت کریں. ہم ان کی اتباع کریں گے، ان کی اطاعت کریں گے تو ہم کامیاب و کامران ہو جائیں گے. یاد رکھیے گا امام حسن کا ایک قول. دیکھیے قرآن کیسا پڑھتے ہیں. یہ وہ ہیں کہ جن کے بارے میں رسول نے فرمایا یہ جنت میں نوجوانوں کے سردار ہیں. قرآن کی جب آیت پڑھتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے یہ آیت جب میں نے ان کا انداز دیکھا. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. فوراً امام حسن مخاطب ہوتے لبیک یا اللہ، اے اللہ میں حاضر ہوں. یا اللہ کنیکشن. میں صرف اتنا کہوں گی کہ ہم اس ٹرانسمیشن کو آگے لے کے چلیں گے. ہم سب یہاں پر موجود ہیں. تھوڑی دیر بعد بھابھی بھی ہمارے ساتھ ہوں گی. جویریہ میں کہوں گی آج کے دن کے مناسبت سے بہت خوبصورت سا کلام ایسا پڑھ دو کہ وہ سب ساتھ تمہارے پڑھ رہے ہوں. ضرور. بسم اللہ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم وصلی علیہ. اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ ورا ہے. اللہ اللہ نبی کا گھرانہ. اختلاف سے صرف آگ نہیں بھڑکتی، پھول بھی کھل اٹھتے ہیں. کہ جو اختلاف ذاتی مفاد سے بڑھ کر اجتماعی حسن ہے فاطمہ ہے، اس گھرانے میں مشکل کشا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور لب
अपनी किस्मत पे दिल झूमता हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, जीते रहो, सुभान अल्लाह। नबी का घराना, ये घराना वराउल वरा है। इख्तिलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती, फूल भी खिल उठते हैं कि जो इख्तिलाफ जाती मुफाद से बढ़कर इज्तिमाई नफ़े की खातिर बुलंद होता है, कौमें उसी की रोशनी में आगे बढ़ा करती हैं और सर बुलंद होती हैं। मेरी कौम इस दुनिया में खूब सर बुलंद हो, ये मेरा मसला है, जिसके हल की खातिर अरबाब इख्तियार के नाकिस फरमानों और फैसलों पर मेरा हाथ खुद ब खुद कलम की जानिब बढ़ जाता है और मैं लिखता हूँ इख्तिलाफी नोट। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट जुम्मा से इतवार रात 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शबाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के ज़माने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम जहरा @8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा @8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका। कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा किया। एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बात की किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाए। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से
जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा, इस मुल्क की तो ये स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज। कोयटा में फिर दहशतगर्दी, मोटरसाइकिल सवारों का चौकी पर हमला, फायरिंग से 3 अहलकार शहीद, 1 राहगीर जख्मी। कतर में फौजी दस्तों की तैनाती की रिपोर्ट्स मुस्तरद। दफ्तर खारजा का कहना है आलमी मीडिया की खबरें पाकिस्तान और मुसलमान ममालिक के दरमियान गलत फहमियां पैदा करने की कोशिशें हैं। कराची में मछली के शिकार के लिए माई कोलाची नदी जाने वाले 2 लड़के डूब गए, लाशें निकाल ली गईं। हसन और ताहिर मदरसे के तालिब इल्म थे। के इलेक्ट्रिक बिला तातुल बिजली फराहम करने में नाकाम, छुट्टी के दिन भी गुलिस्तान जौहर, नॉर्थ कराची, नाजिमाबाद, मलीर और कोरंगी में गैर एलानिया लोड शेडिंग। खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली का दावा गलत साबित, पेशावर में पुलिस का टैक्सी ड्राइवर पर तशद्दुद, ट्रैफिक वार्डन ने भी रेडी बांध के नाक की हड्डी तोड़ दी, आईजी का नोटिस, इंक्वायरी का हुक्म। और चैंपियंस ट्रॉफी के अहम मैच में इख्तिलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती, फूल भी खिल उठते हैं कि जो इख्तिलाफ जाती मुफाद से बढ़कर इज्तिमाई नफे की इख्तिलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती। न्यूज़ के साथ मैं हूं रुकमा इरफान मलिक। हेडलाइंस आपने जानी और अब देखिए इफ्तार ट्रांसमिशन, रमजान इश्क है। इख्तिलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती, फूल भी खिल उठते हैं कि जो इख्तिलाफ जाती मुफाद से बढ़कर इज्तिमाई नफे की खातिर बुलंद होता है, कौमें उसी की रोशनी में आगे बढ़ा करती हैं और सर बुलंद होती हैं। मेरी कौम इस दुनिया में खूब सर बुलंद हो, ये मेरा मसला है जिसके हल की खातिर अरबाबे इख्तियार के नाकिस फरमानों और फैसलों पर मेरा हाथ खुद ब खुद कलम की जानिब बढ़ जाता है और मैं लिखता हूँ इख्तिलाफी नोट। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट जुम्मा से इतवार रात 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट, न्यूज, एनालिसिस, DNA। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शबाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर।
आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा एट 8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा एट 8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका। कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास तो आपकी किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा। इस मुल्क की तो ये स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वज़ारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर, डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है, उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? UN में 14 साल बाद पाकिस्तान के किसी सरबराह ने खड़े होकर कश्मीर पे जोर मचाया। कुलभूषण का नाम नहीं लिया। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफ राय पीर ता जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। लंदन, पेरिस, US में मालो महल बना ले, स्विस बैंक के खातों में अपना माल छुपा ले। इनको सड़कों पर लाकर सीटा तो मेरा नाम शबाज शरीफ नहीं। वेरी फनी। इन ऐवानों को गिरा दो। हमेशा हुकूमत के रिंग पे स्टैंड बैठ गए हुए हैं। और कोई शर्म होती है और कोई हया होती है। लैपटॉप और बैकड्रॉप उसकी जमहूरियत है। जमहूरियत है क्योंकि जमहूरियत है। जमहूरियत है क्योंकि जमहूरियत है। जमहूरियत है क्योंकि जमहूरियत है। जमहूरियत का पे। देखिए क्योंकि जमहूरियत है हर जुमे की रात 11:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। इख्तिलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती, इख्तिलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती, फूल भी खिल उठते हैं।
कि जो इख्तिलाफ ज़ाती मुफाद से बढ़कर इज्तिमाई नफ़े की खातिर बुलंद होता है, कौमें उसी की रोशनी में आगे बढ़ा करती हैं और सर बुलंद होती हैं। मेरी कौम इस दुनिया में खूब सर बुलंद हो, ये मेरा मसला है, जिसके हल की खातिर अरबाबे इख्तियार के नाकिस फरमानों और फैसलों पर मेरा हाथ खुद ब खुद कलम की जानिब बढ़ जाता है और मैं लिखता हूँ इख्तिलाफी नोट। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट जुम्मा से इतवार रात 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शबाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के ज़माने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी ज़िंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा एट 8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा एट 8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका, कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास तो आपकी किसी बात पे जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाए हैं। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दमाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा, इस मुल्क की तो ये स्टोरी है। जैसी करनी
वैसी भर। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वजारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर, डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है तो उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? UN में 14 साल बाद पाकिस्तान के किसी सरबराह ने खड़े होकर कश्मीर पे जोर मचाया। कुलभूषण का नाम नहीं लिया। देखिए प्रोग्राम इख्तलाफ राय पीर ता जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लंदन, पेरिस, US में मालो महल बना ले, स्विस बैंक के खातों में अपना माल छुपा ले। बिल्कुल सड़कों पर ना घसीटा तो मेरा नाम शबाज शरीफ नहीं। वेरी फनी। इन ऐवानों को गिरा दो। हमेशा हुकूमत के रिंग पे स्टैंड बैठ गए हुए हैं। और कोई शर्म होती है और कोई हया होती है। हाँ, मदीने में हमने सबने साथ ही है ना, चारों तरफ साथ महसूस हो रहे हैं ना। मुझे रोज महसूस होते हैं, रोज हमें भी होता है, रोज जैसे हमारे घर में ही है साथ ही। अभी आ रहे हैं, अभी जा रहे हैं। जो जिंदगी थी वही जिंदगी। आज 1 साल पहले माँ पूरा दिन साथ ना, पूरा दिन साथ, पूरा दिन साथ, पूरा दिन साथ। ये आज का ही दिन था, आज का दिन, आज का दिन था। आज का दिन पूरी रात यहीं था, है यहीं पे थे पूरी रात, पूरी रात, पूरी रात, पूरी रात। फिर एक दूसरे चैनल पर गए, फिर यहाँ जो कलाम पढ़ा, आपने पूछा है अमजद तूने क्यों पढ़ा ये कलाम? क्या बोले? अम्मा दिल चाह गया, दिल चाह गया, दिल चाह गया। ये सारी बातें इसलिए मुझे मालूम है क्योंकि मेरा सिर्फ स्क्रीन का रिश्ता नहीं है इनसे। अरे भाई, दिल का रिश्ता, तुम्हारा रिश्ता तो बहुत दिल का रिश्ता, बहुत ज्यादा रिश्ता है। हमारे से ज्यादा तो आप लोगों के साथ गुजारते थे। नहीं, तुम्हारा ज्यादा है। मैं अमृत पे थे, मैंने कहा साथ आना था हम सबने। हाँ। तो बेसाख्ता कहती है अरे तुम्हारे साथ ही तो है तुम्हारा भाई। इनका भाई होता भाई, सबका भाई, सबका बेटा, पूरे यूरोप, पूरा पाकिस्तान का भाई बेटा। हर इंसान इसके लिए रो रहा। पता नहीं ये हुआ क्या, क्यों ले गए इसको, ले गए मेरे बेटे को, कौन ले गया? चलते फिरते किचन, इधर उधर, फ्रिज, क्या पक रहा है आज, क्या बनेगा, सारे बेटा तुम बना रही हो आज के नहीं बना रही हो? जिस दिन ना बना उस दिन नखरे, मुझे खाना ही नहीं है, मुझे खाना ही नहीं है। तुम्हारी भाभी को भाभी बोले भाई तुम्हारे हाथ की पसंद थी। हाँ। उनको कहते वो बनाती है पकोड़े, सहरी आप लोग घर से भेजते, घर से भेजते, घर से आया करते हैं, उसकी सहरी भी आया करते। नान नहीं खाता था कोई भी चीज़। वहाँ पर भी मुझे, हम सफ़र में थे तो गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हुई। भाभी अपने भाई की तरह तुम्हें भी गैस्ट्रिक मसला, मैंने कहा कुछ और अच्छी चीज़ नहीं ले सकती थी मैं, गैस्ट्रिक का मसला ले लिया मैंने भाई से। इख्तिलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती, फूल भी खिल उठते हैं कि जो इख्तिलाफ जाती मुफाद से बढ़कर इज्तिमाई नफे की खातिर आपको खुश आमदीद। तला भाई हमारे साथ है, कितना साथ तला भाई, कितना साथ माशाल्लाह, कितनी कव्वालियाँ साथ, कितनी महफिलें, कितना पढ़ना। हम घर में जाएं जब उर्स हो तो एक दफ़ा पिछले साल था
पढ़ो अपने भाई के साथ जो तुमने वो राजस्थानी में गाना गाया है, गाओ चलो दोनों। मैं कहा मैं आपके सामने कैसे गाओ, चलो दोनों भाई बहन भाई गाओ। अब वो राजस्थानी में गाना है मेहंदी, मेहंदी लगे थारे हाथा में, है क्या है उसके अशार? मेहंदी लगे थारे हाथा में, कजला सजो थारी आँखें में। बता भाई सारा याद है माशाल्लाह, आपको तो खुद ही याद। ऐसो सुहानो रूप मारे ओ साजना, साजना ऐसे ही है भाई। बड़ा प्यारा रिकॉर्ड हुआ है वो, हमारी एक याद है जो मैं इन पांचों को डेडिकेट करूंगी इंशाल्लाह जिस दिन आप सब लोगों को। इतना प्यारा, अब वो मुझे साथ में राजस्थानी पढ़ना सिखाएं। अरे हाथा माँ, अच्छा अखियां माँ, मैंने कहा अच्छा। अब वो अच्छा अच्छा बोल रही हूँ, खुदा की कसम ये अच्छा लग रहा है तेरा, अच्छा यही रिकॉर्ड करवा, यही रिकॉर्ड कर ले। अच्छा अब वो उस गाने में बीच में मैं कहूँ वो गाए मेहंदी लगे, कह रहे है ना किसकी आंखों में चमक किसकी है? कि तेरी भाभी की है। छेड़ू मैं तो छेड़ू, मैं तो रिश्ता ही छेड़ने का। बहुत प्यार करने वाला शख्स, बहुत प्यार करने वाला, हर इंसान, बीवी को, बच्चों को, ओहो तुम्हें, दुनिया, बहुत बहुत बहुत। इधर तो जिंदगी गुजरी है ना, उस जिंदगी के थोड़े थोड़े हिस्से हमारे। बस मुझे शायद इतना पता चला, मैं अक्सर बोलती हूँ मदीने में होते थे, बात करते करते रो पड़े, नमाज पढ़ते पढ़ते ये मुंह उधर करके रो रही हैं। अल्लाह पाक कैसे रिश्ते बना गया हमारे। मुफ्ती नूररहमानी भाई, सरवत आपा, डॉक्टर उम्मे राहील के साथ, अरे ये मेरी बहन है भाई, इलाज करना था, अगर किसी आदमी के लगाना है। तो मैं इस वक्त के बाद बताऊं आपको आके कि आज के दिन हम साथ थे जाहिरी तौर पर, साथ तो आखिरी सांस तक रहेंगे। इस वक्त के बाद आ रही हमारे साथ इख्तिलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती, फूल भी खिल उठते हैं कि जो इख्तिलाफ जाती मुफाद से बढ़कर इज्तिमाई नफे की खातिर बुलंद होता है, कौमें उसी की रोशनी में आगे बढ़ा करती हैं और सर बुलंद होती हैं। मेरी कौम इस दुनिया में खूब सर बुलंद हो, ये मेरा मसला है जिसके हल की खातिर अरबाबे इख्तियार के नाकिस फरमानों और फैसलों पर मेरा हाथ खुद ब खुद कलम की जानिब बढ़ जाता है और मैं लिखता हूँ इख्तिलाफी नोट। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट जुम्मा से इतवार रात 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर।
آوازوں کے شور میں مقاصد گم ہو جاتے ہیں. تکرار کی تلخی میں بات بنتی نہیں، بگڑتی ہے. لیکن ہم تلخی سے نہیں، مکالمے سے بات بڑھائیں گے. ہم ہر اہم خبر کی تہ تک پہنچیں گے لیکن ثبوت کی روشنی. ہم ہر بات کریں گے لیکن حقائق کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ. نسیم زہرا @8 میں دیکھیے پروگرام نسیم زہرا @8 جمعے سے اتوار رات 8:03 پہ صرف 24 نیوز HD پر. لکھتے رہے جنوں کی حکایات خوں چکا. قلم اور اسکرین تک کا طویل تجربہ کیا. ایک بھرپور صحافتی تاریخ کے ساتھ پروگرام مجاہد لائیو. دیکھیے پروگرام مجاہد لائیو پیر سے جمعرات شام 7:03 پہ صرف 24 نیوز HD پر. پیناما لیکس میں ابھی تک $55 بلین پاکستانیوں کا آئیڈینٹیفائی ہوا ہے. ہمارے ملک کی عورتیں جو ہیں وہ ٹارچ لائٹوں میں اپنے بچے جننے پہ مجبور ہو گئی. کیا ابھی یہ گارنٹی ہے کہ آگے ایسا وہیں پہ نہیں ہوگا یا کہیں اور پہ نہیں ہوگا؟ سچی بات ہے کہ میرے پاس باپ کی کسی بات کا جواب نہیں. جہانگیر ترین کی سیاست خطرے میں پڑ گئی تھی جب ان کو یہ بتایا گیا کہ انہوں نے قرضے معاف کروائے ہیں. ہمارے یہاں کا عدالتی نظام اگر سہولت مرزا کو پھانسی دیتا ہے اس آدمی کو کیوں چھوڑ دیتا ہے جو سہولت مرزا بنانے میں؟ کیا کوئی بھی کرپٹ سیاستدان جو ہے اس کی چوری جو ہے اس کو پکڑنے سے جمہوریت خطرے میں پڑتی ہے، انصاف خطرے میں پڑتا ہے؟ جو طاقتور لوگ ہیں ان کے لیے نہ قانون ہے نہ انصاف ہے. اب یہ جوائی پولیس یعنی دماد پولیس میں کنورٹ ہو چکی ہے. جتنا لچا اتنا اچھا. اس ملک کی تو یہ اسٹوری ہے. جیسی کرنی ویسی بھرنی. دیکھیے پروگرام کھرا سچ پیر سے جمعرات کی رات 10:03 پر صرف 24 نیوز HD پر. انشاءاللہ ہم قوم کی تقدیر بدل دیں گے. انشاءاللہ لوڈ شیڈنگ ختم کر دیں گے، امپلائمنٹ لے کر آئیں گے، انفراسٹرکچر بلڈ کریں گے. تو میں ان باتوں پہ یقین نہ کروں کیونکہ وہ اسمبلی میں بات کر رہے ہیں اور یہ سب سیاسی بیان ہے، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. کیا کہیں گے آپ؟ ابھی آپ ایک پروگرام کر رہے ہیں، دوسرا اسی طرح کریں گے تو آپ کے تھوڑا سا نا اس میں لفظوں میں فرق پڑ جائے گا. آپ نے بھی تاریخ پڑھی ہے اور تاریخ بشریت میں اب تک یہی ہوتا آیا ہے کہ ماں باپ نے اپنی اولاد کو بچانے کے لیے بڑی قربانیاں. ایک دور ایسا بھی آئے گا کہ ایک شخص اپنی وزارت عظمیٰ بچانے کے لیے پوری دنیا میں اپنے بچوں کو چور، ڈاکو اور لٹیرا کہلوائے گا. کلبھوشن یادیو آپ نے انڈیا کا منکی پکڑا ہوا ہے تو اس کو دنیا کے آگے پریزنٹ کیوں نہیں کرتے؟ UN میں 14 سال بعد پاکستان کے کسی سربراہ نے کھڑے ہو کر کشمیر پہ زور مچایا. کلبھوشن کا نام نہیں لیا. دیکھیے پروگرام اختلاف رائے پیر تا جمعرات رات 8:03 پر صرف 24 نیوز HD پر. लंदन पेरिस US में मालो महल बना ले, स्विस बैंक के खातों में अपना माल छुपा ले. इनको सड़कों पर ना घसीटा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं. वेरी फनी. इन ऐवानों को गिरा दो. हमेशा हुकूमत के रिंग पे स्टैंड बैठ गए हुए हैं. और कोई शर्म होती है और कोई हया होती है. लैपटॉप और मेट्रो बस की जमहूरियत है. دیکھیے کیونکہ جمہوریت ہے ہر جمعے کی رات 11:03 پہ صرف 24 نیوز HD پر. اختلاف سے صرف آگ نہیں بھڑکتی، پھول بھی کھل اٹھتے ہیں کہ جو اختلاف ذاتی مفاد سے بڑھ کر اجتماعی نفع کی
इख्तिलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती, फूल भी खिल उठते हैं कि जो इख्तिलाफ जाती मुफाद से बढ़कर इज्तिमाई नफ़े की खातिर बुलंद होता है, कौमें उसी की रोशनी में आगे बढ़ा करती हैं और सर बुलंद होती हैं। मेरी कौम इस दुनिया में खूब सर बुलंद हो, ये मेरा मसला है जिसके हल की खातिर अरबाबे भाई 5 चेहरों में नजर आ रहे हैं मुझे, अपनी माँ के चेहरे में नजर आ रहे हैं, अपने भाइयों के चेहरों में नजर आ रहे हैं। आज मेरी ट्रांसमिशन कंप्लीट हुई, आंखें तलाशती हैं, टटोलती हैं, किधर है? कभी यहाँ से आएंगे, कभी वहाँ से आएंगे, आ जाएंगे, हाँ, कभी सेगमेंट में आ जाएंगे, हाँ, कभी कोई किसी से कोई बात हो रही होगी, प्याज कट रही होगी, उसमें भी आ जाए। अच्छा भाई बताओ प्याज कैसे काटी जाए? हाँ, प्याज कैसे काटी जाए? खाने कितने बनाते? कहाँ चले गए? ले गए, चले गए लोग, कहीं छुप गए, नजर तो नहीं आ रहा। मुझे तो आ रहा है आप में, मुझे तो आप में नजर आ रहे हैं, मुझे तो इनमें नजर आ रहे हैं। बच्चियां देखो कितनी जल्दी बड़ी हो। अरे देखो तो सही, ये मुझसे अभी एक साल में बड़ी बड़ी हो। अभी हम उम्रे से जाने से पहले मुलाकात हुई थी। हाँ, बच्चों से कहा एयरपोर्ट पे तो मिले थे हम। अच्छा, जब ये लेने आए थे, हाँ, तब भी माशाल्लाह अभी मुझसे मिल रहे हैं। मैंने कहा आप कौन? अच्छा, एक हुरी और एक परी, नाम तो हुरैन और परीसा है, क्योंकि मैं इतना जुड़ी हुई हूँ, ये खुद बताएंगी दोनों, कि मेरा हर चीज में बात जिक्र, मेरा निकाह हुआ, भाभी ने डांट दिया, बेइज्जती हो गई मेरी, लेकिन भाभीयों से डांट खाने में जो मजा है, हाय हाय हाय, उस प्यार का भी कुछ नहीं है। वहाँ पर अभी उम्रे पे हम साथ थे, डॉक्टर साहब भी हैं, जवेरिया, हम लोग, और तबीयत मेरी खराब हुई तो भाई मैंने कहा ये ना समझो कि तुम्हारा भाई नहीं है, तो अम्मी ने मुझे भेजा और मैं पूछने आई हूँ कि ये ना तुम्हें फील हो। अम्मी ने मुझे कहा था कि जाके माया को पूछ लो, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, मेरी हिम्मत नहीं है, आप चली जाओ। मैंने कहा हाँ अम्मी जाके पूछती हूँ, क्योंकि रोज ही हमारा सुबह एक साथ ही निकलते थे। आज के दिन भी क्या हुआ था लास्ट जब निकल रहे थे, क्योंकि आज तो पूरा फुल डे उन्होंने बज़ाहिर गुजारा हम सबके साथ। वो आप लोगों के साथ गुजारा था, हमारे पास से तो वो उठे, उसके बाद आपके पास आ गए थे। रूटीन बताएं सबको कि रमजान में रूटीन भाई का होता क्या? रूटीन बहुत टफ होती थी। सुबह तकरीबन 6 बजे घर में आते थे सहरी की ट्रांसमिशन से, कभी 7 भी बज जाते थे, आके सो जाते थे, फिर 1 बजे के टाइम पे उठ के तैयार हुए, नमाज पढ़ी और गाड़ी आ गई और चले गए। बाज़ दफ़ा खुद भी ड्राइव करके आ जाते थे। तो बस हमारे लिए तो बस वो चंद मिनट ही होते थे, चंद घंटे। और लेट होते थे तो आपसे क्या कहते थे मेरे बारे में? बता दे दुनिया को, बता दे। मुझे मारेगी पकड़ के माया, वो मुझे मारेगी, मुझे जाना है बहुत जल्दी, मुझसे लड़ती है बहुत ज़्यादा भाई। तो बस जल्दी जल्दी में रहते थे ज़्यादा, आना जाना। रमज़ान की रूटीन यही होती थी, बहुत जल्दी में रहते थे, सहरी में भी, अफ्तार में भी। बहुत कम अफ्तार में हमारे साथ होते थे, बहुत कम सहरियों में। तकरीबन 4-5 साल से तो ज़्यादा बिजी हो गए थे, ज़्यादा हो गए थे हम लोग की ट्रांसमिशन जो थी ना, हाँ बहुत ज़्यादा हो गई थी वो। फिर इस वजह से वो बहुत कम घर पे होते थे, और जिस दिन घर पे होते थे उस दिन सब ऐसे लगता था जैसे ईद का दिन, ईद का दिन है। सबको बुला लेना, वो जो 4-5 को ना घर में जो अपना, हाँ 4 रमज़ान को, 4 रमज़ान को सबको आ रहे हो ना, सब हमारे पहुँच रहे हो ना, पहुँच रहे। मैं तो फ्लैट हो गई, अगर तुम नहीं आई तो भाभी मेरा खाना भिजवाया, हाँ। जो कि जवेरिया भूल गई थी लाना मेरे पास। भाई मुझसे कह दिया जवेरिया ने रख लिया। हाँ जवेरिया ने रख लिया। अच्छा, कह रही भाभी खाना मैंने भिजवाया, तुम्हें मिला? मैं कह नहीं मुझे नहीं मिला। अब जाहिर है मैं घर पे ना पहुंचूं तो वो सब फील करें, सबका हमारे साथ बैठना, फिर महफिल जब खत्म हो तो सब लोग आ जाएं, बैठे, हम लोग कवालियाँ पढ़े घर में, सिर्फ घर में, कोई और वो नहीं। रवानी भाई, राजू भाई और सरद आपा और सब लोग, हम लोग घर में हो। लास्ट ईयर हम लोगों ने भी जाना था, तो जवेरी और डॉक्टर मिराइल कह रही हैं आप चल रही हैं? मैंने कहा यार मेरी हालत देखें कि मैं हम भाई को बोल देना नाराज़ नहीं हो, लेकिन बहुत मारेंगे मुझको, बहुत सुनाएंगे। सबसे ज़्यादा सुनाने वाली ये बैठी हमारी, वो छोड़ेंगे तो नहीं है मुझे। अच्छा, ये दोनों होकर आ गए, मुझे मैंने कहा भाभी को फ़ोन किया, मैं भाभी मेरे हिस्से का भेज दीजिएगा ना, न्याज का है, तो मैंने कहा छोड़ू नहीं, मैं मेरे हिस्से का भेज दीजिएगा। हर चीज़ में, हर वो
हर एक से रिश्ता। मैं ये कहती हूँ कि जितने मिलने वाले, आने वाले, बात करने वाले, सब ऐसे करें, हमसे बहुत प्यार करते थे। ये बात देखो, ये सोचने की बिल्कुल है। हर बंदा आपको जहाँ कहीं हम जाते हैं वो बस वो यही कहता है, हाँ जो मेरी बात थी वो किसी की नहीं है, जो मेरी बात हाँ थी वो मेरी किसी के। एक बहन को मैंने नॉर्मल सवाल किया उस दिन ऑडियंस में, घर पे भी इतने लोग आते हैं, हाँ। लंदन, अमेरिका, फलान, जो हमारी बात थी ना वो किसी की, हाँ बस जो हम जैसे मेरी बात थी, जो भी कहे, मुझसे बहुत प्यार करते थे। हाँ। मुझसे बहुत, मैं तो कहती हूँ, मुझसे लड़ते बहुत कर रहे, मैं तो जीत गई इसमें। जो एक होता है ना जिससे ज्यादा लड़ाई होती है, जिससे लड़ाई बहनों में होती आगे पीछे, है ना। हाँ तो वो आप ही थी शायद। मैं ही थी। मुझे लड़ाई बहुत होती है हर चीज में। हाँ। लेट क्यों आए, खुदाई कसम है। एक दिन तो मतलब लास्ट ईयर भी ऐसा हुआ, ऐसा ही बात करना, मैं नहीं बात करी, मैं लेट क्यों हुए यार, क्या तरीका। नहीं वाकई है संजीदा लड़ाई ना हमारी, कोई मजाक की लड़ाई, लेट क्यों हुए यार, क्या तरीका यार ये। अच्छा यार मैंने माफ कर दे यार मुझे, मतलब ये हमारी क्या बदली यार, हमको पता नहीं है आपका सेगमेंट शुरू हो रहा है आप लोगों के बगैर। हसान भाई, हसान है, रेहान भाई, फरहान, ताबिंदा भाभी, सब लोग लेट। आप लेट होगा, आपको पता सेगमेंट लेट हो गया, वहाँ सोहेल यार, अमजद भाई यार। अच्छा अब वो डांट खाते हुए की शक्ल शर्मिंदगी वाली नहीं होती थी, नहीं ना 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 डांटते हुए शर्मिंदा तो किसी चीज से ही नहीं थे, नहीं तो अल्लाह भाई। में भी सुरखरू हो गए थे, अल्लाह में भी जाके सुरखरू हो और गए, ऐसे वो तो ऐसे गुस्सा हो रहा है। और गुस्सा है, ऐसा मतलब बच्चा बताओ, होना और बहुत तब मुश्किल जाए है। गुस्से में है। अगर किसी को गुस्सा आता था ना तो उसके सामने ऐसे हंसते थे कि उसको मजीद गुस्सा है। हाँ उसके तपा के, अगले की जला के, सुलगा के गायब। भाई भी हंस रहे, कितनी कैफियत से, उनकी एक एक मिजाज से मैं वाकिफ, कब आंखें उठ रही हैं, कब कहाँ आंखें जा रही हैं, हाथ कब क्यों उठ रहा है, कैसे चलना, कैसे उठना, किस बात पे क्या रिएक्शन आएगा। पिछले साल वो एक कोई फीमेल गार्ड थी हमारी ना, सिक्योरिटी गार्ड, तो मेरी टीम ने बोला कि आप ही इनको ना उम्रे का टिकट जब जाता है ना रोज, तो ये रोता, थोड़ा सा बैकग्राउंड ऐसा कर देगा, रोज रोती है ना बेचारी, जब उम्रे का टिकट दूसरों को जाता है ना, बड़े बड़ी रोती थी। तो एक दिन मेरी टीम ने बोला कि ना वो एक सिक्योरिटी गार्ड है ना। अच्छा मुझे नहीं पता था कि भाई की नजरों में भी वो थी, अब मुझे नहीं ज़हन में था बखुदा। अब जब हम लोग नहीं, उम्रे का टिकट आप सब लोग नात पढ़ रहे थे, शायद उस दिन रहमानी भाई भी थे, आपको शायद याद हो, ये सब नात पढ़ रहे, मैं खामोशी से, अच्छा उन खातून को भी नहीं पता, वो ना महब कलाम में, अदब में आंखें नीचे, रोई जा रही, उनको मालूम ही नहीं, मैं उनके पास जाके खड़ी हो गई और जाके मैंने उनके सामने ना टिकट रख दिया उम्रे का। वहां से भाई रोना शुरू हो गए, वहां से वो रोना शुरू हो गई। खुदाई कसम बेटा तूने बहुत सही शख्स को दिया है, मैं जब से देखता रोज। मैंने कहा आप नोट कर रहे थे ये रोती है रोज। अच्छा नोट सब कुछ करते थे, सबको नोट करते थे, सब पे नजर, सबको याद रखना, सबको देखना एक नजर से सब। माइक पे भैया, माइक पे बोलिए। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह उसका जो परसेप्शन था ना वो बहुत हाई था, बहुत हाई था। मैं ये और बड़ी अवेयरनेस थी उसको अपने सराउंडिंग की, हर चीज के ऊपर बहुत बारीक नजर रखता था, कभी भी ऑब्जर्वेशन, वही ऑब्जर्वेशन, बहुत ऑब्जर्व जी। फौरन माशाल्लाह से अभी जो आपने बात कही थी कि हर आदमी ये कहता है कि मैं मुझसे ज्यादा, ये उसका जो तरीका मिलनसारी जो था। एक बात किसी ने कही कि इंसान अपने इल्म की वजह से याद नहीं रखा जाता, इंसान अपने इल्म की वजह से याद नहीं रखा जाता, हमेशा अपने अखलाक की वजह से याद रखा जाता। ऐसा ही है, और अखलाक उस इंसान का, मैं क्या बोलूं भाई का, हर बंदा उस शख्स की मोहब्बत का हिस्सेदार है। खाली अखलाक ही नहीं, अदब का भी जो उसका एक मयार था, कोई शक नहीं इसमें। सफ़े के बाद होते हो जाता हमारे साथ रहेगा हमारी ऐसी। अब मुझे समझ नहीं आ रहा क्योंकि ये बड़ा फॉर्मल लग रहा है ना, हम तो घर में यहाँ बैठ जाएं, या हम लोग उम्रे पे थे गोद में बैठ जाएं, थक रहे हैं तो कोई वहीं लेट रहा है एक दूसरे के ऊपर। अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं फॉर्मली बात कैसे करूँ, ऐसा लग रहा है। अच्छा ऐसे बड़ा फॉर्मल सा बात। सफ़े के बाद हाजिर हुई है। आज मेरे भाई पिछले साल पहुँचने वाले थे, थोड़ी देर में, लम्हा जहन में वही चल रहा है, वही टाइम चल रहा है, आते हमारे साथ
इख्तिलाफ से सिर्फ आग नहीं भड़कती, फूल भी खिल उठते हैं कि जो इख्तिलाफ जाती मुफाद से बढ़कर इज्तिमाई नफे की खातिर बुलंद होता है, कौमें उसी की रोशनी में आगे बढ़ा करती हैं और सर बुलंद होती हैं। मेरी कौम इस दुनिया में खूब सर बुलंद हो, ये मेरा मसला है, जिसके हल की खातिर अरबाबे इख्तियार के नाकिस फरमानों और फैसलों पर मेरा हाथ खुद ब खुद कलम की जानिब बढ़ जाता है और मैं लिखता हूँ इख्तिलाफी नोट। देखिए प्रोग्राम इख्तिलाफी नोट जुम्मा से इतवार रात 7:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA। हम अवाम हैं या रियाया, हमारे हुकूक की पामाली आखिर कब तक? अरबपति हुक्मरान और फाका का शवाब, क्या गुर्बत नाकाबिले हल मसला है? सियासत बैंक अकाउंट्स की गुलाम क्यों? अवामी सियासत के जमाने क्या हुए? सियासत बराए अवाम या बराए दौलत? हमारी जिंदगी से जुड़े सवालों के जवाब देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम में। देखिए प्रोग्राम सिचुएशन रूम जुमे से इतवार शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा एट 8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा एट 8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका, कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा किया। एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बात की किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छू देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दमाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा, इस मुल्क की तो यही स्टोरी है। जैसी करनी
वैसी भरती। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वज़ारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर, डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है, तो उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? UN में 14 साल बाद पाकिस्तान के किसी सरबराह ने खड़े होकर कश्मीर पे जोर मचाया। कुलभूषण का नाम नहीं लिया। देखिए प्रोग्राम इख्तलाफ राय पीर ता जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लंदन पेरिस US में मालो महल बना ले, स्विस बैंक के खातों में अपना माल छुपा ले। इनको सड़कों पर ला घसीटा तो मेरा नाम शबाज शरीफ नहीं। वेरी फनी। इन ऐवानों को गिरा दो। हमेशा हुकूमत के रिंग पे स्टैंड बैठ गए हुए हैं और कोई शर्म होती है। अवतार ट्रांसमिशन साथ गुजारी, भाभी हमारे साथ मौजूद हैं, अम्मा हमारे साथ मौजूद हैं, भाई हमारे साथ मौजूद हैं और ये भतीजा भतीजी हमारे साथ मौजूद हैं। और हम लोगों का ऐसा माहौल हमारा ट्रांसमिशन का होता जिसमें वाकई में घर वाला होता। अब राजा भाई हमारे साथ, नुरमानी भाई भी हैं, वो आ रहे हैं थोड़ी देर में। हमारे सरवत आपा को माशाल्लाह कुछ टाइम हो गया हमारे साथ, लेकिन आप और रबाब इस बरस माशाल्लाह बाकायदा हिस्सा बने हैं इस ट्रांसमिशन का। सबका यही है कि घर वाला माहौल है हम सबका। बिल्कुल, घर इसमें वाला कोई शक नहीं है जी, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल ये घर वाला माहौल है और सब घर के अफराद हैं और जिसमें घर के रूह रवा अमजद भाई थे। अमजद भाई का हंसी मजाक, उनकी बातचीत, अच्छा और माया हंसी मजाक होता था लेकिन वो कभी किसी के एहतराम को नहीं जाने देते थे। बिल्कुल। और मैं पिछले साल हमारी ट्रांसमिशन जहाँ थी तो मैं एक वाकया दोहराना चाहती हूँ अम्मा, क्योंकि सामने इसलिए मुझे वो वाकया बार बार याद आ रहा है कि एक दिन तजावुज़, अपनी हुदूद से तजावुज़ करने का कुछ इस तरह का टॉपिक था। तो ऑडियंस में एक लड़की ने कहा कि मेरे हस्बैंड जो है वो ऑफिस से आते हैं तो सीधे अपनी अम्मा के यहाँ चले जाते हैं, मैं घर पे इंतज़ार करती रहती हूँ। अच्छा, माया ने कुछ थोड़े से आर्गूमेंट्स किए, कुछ हमने बातें की, बस पता नहीं देखते देखते अमजद भाई को क्या हुआ, वो आलती पालती मार के सोफे पे बैठ गए और उन्होंने वहां से उस लड़की को ललकारा, कहा देखो मैं बड़ी देर से तुम्हारी बात सुन रहा हूँ, चुपचाप बैठा था, माँ के बीच में मत आना, अम्मा अम्मा है, ठीक है, और तुम क्यों उससे कह रही हो? हाँ मैं थी उस वक्त ना, मैं ये बात मैंने कितने लोगों को बताई, कितने लोगों को दोहराई और उन्होंने कहा वो तो ऑफिस से आने के बाद जाता है, तुम्हें पहले जाके बैठना चाहिए अम्मा के पास। और माँ के से, अरे ये जुमले ऐसे थे कि वो जो बना बनाया एक माहौल था वो तब्दील हो गया। अरे ऐसे जज्बाती। असल में मैं बात बताता हूँ, अक्सर हमारी बात अमजद के साथ काफी रहती थी, आपको पता है किस तरह का मेरे साथ उसका बिहेवियर है, वो हमेशा एज ए फादर की तरह मुझे रिस्पेक्ट दिया। कभी हम बैठ के बात करते थे तो मैं हमेशा उसे बात समझाता था। दो चीजों के अंदर है, लोगों को हुकूक की बड़ी मतलब वो है, बड़ा टॉपिक चलता है सारे चैनल्स के ऊपर, हुकूक निस्वां, हुकूक ख़वातीन और हुकूक। मैं एक ही बात कहता हूँ, हुकूक बहुत जरूरी है सबके देना, लेकिन हुकूक के साथ पहले फराइज हैं, फराइज भी हैं, बेशक पहले फराइज हैं। जब आप अपने फराइज अदा करेंगे तो आप हुकूक के हकदार बनेंगे, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत है। लेकिन सरवत भाई मैं यही बता रही हूँ कि जो अमजद भाई ने बात की, पूरी स्टूडियो का माहौल चेंज हो गया। अभी तक वो बच्ची बोली जा रही और अमजद भाई को ऐसा गुस्सा आया। मैं बहुत, अरे सुनो मेरी बात, ये आलती पालती मारी है, बहुत देर से सुन रहा हूँ तुम्हारी, मैं बेटा बोरा नहीं मानना तुम। अच्छा मैं उसी अंदाज से बोलूंगी, आप लोग इजाजत है जहाँ पर ना, बहुत देर से सुन रहा हूँ मैं तुम्हारी, माँ के खिलाफ बोली जा रही हो तुम, माँ के खिलाफ, माँ के खिलाफ नहीं सुन सकता मैं।
फिर उसके बाद ये बात, फिर तुम्हें बैठना चाहिए था, मैं ये चाहिए था, वो चाहिए था। अच्छा, वो मैं आपको और बताऊं, माया वो जुमला याद है, वो जो एक तारीखी जुमला उनका था, उसी वाली ट्रांसमिशन उन्होंने कहा, वो माँ जिसने 25 बरस तक पाल के तो उस तुम्हें इतना बड़ा करके शौहर दिया, आज तुम उस माँ और बेटे के बीच में आ रही हो। हाँ, ये जुमला असल में थोड़ा सा मिसकॉन्सेप्ट होता है। लोग ये कहते हैं कि अदब सिखा, इस्लाम में है कि खातून अगर कहे कि उसको अलग घर लेकर दे दें तो उसको देना चाहिए अगर वो अफोर्ड कर सकता है। नहीं वो हुआ इस तरह से लेकिन ये उसकी मर्जी है कि वो उसके पास कितनी दफ़ा जाए या ना जाए, क्योंकि ये इस्लाम में एक वक्त में 4 शादियां जायज़ है। 4 खवातीन को वो 4 घर लेकर दे सकता है, लेकिन ये इंसान के ऊपर मुनहसर है कि वो किसके पास जाना चाहिए। भाई हम इशारा समझ लें क्या किसी बात पे हवाले से हैं? देखें आप हैं उन्हीं के भाई और मैं हूँ उन्हीं की बहन, तो आप कहीं इशारा तो नहीं दे रहे। पूरे न्यूज चैनल में हम रिपोर्टर चला दें अगर इजाजत है तो। बिल्कुल बिल्कुल आपकी बहन है भाई। भाई आजकल वैसे टारगेट पे है ना। हाँ, सब इनको इसी भाई परसों से मेरे ऊपर पता नहीं सब ने जलगार कर रखा है। कहीं डबल ईद तक का प्लान तो नहीं है। बस यही हो रहा है भाई के साथ। ये है मेरे भाई की रौनक है जी रमानी भाई। असल में हुआ इस तरह के ये प्रोग्राम पहले शुरू हो चुका था, अमजद भाई देर से आए थे, 13 या 14 रमजान की बात थी, ठीक है ना। तो जैसे ही वो आए मैं गया उनके पास, मैंने कहा देखो भाई मैं अकेला मर्द हूँ, सारी औरतें बैठी नहीं। अच्छा ये बात हुई ना। हाँ ये हुई थी। हाँ अच्छा, मुझसे बड़ी मोहब्बत करते थे, कोई बात नहीं तेरा भाई है ना। मैंने कहा मसला ही है, मैं तो कुरान हदीस की बात करूँ, मगर ये सारी औरतें एक साथ शुरू होंगी। आपा भी सवद आपा भी थी, डॉक्टर मिराहिल, मैं सारी औरतें थी और मैं अकेला एक मर्द, बच्चियाँ थी। हाँ तो जैसे ये आए ना तो मैंने कहा सपोर्ट के लिए मेरे पास ही आके बैठ गए और फिर मुझे देख के जैसी कोई बात करते मुझे इशारा करते, मैं कहता हूँ बस सही बात। एक सहारा देने का उनका एक और इशारा ना कि अगर आप लोग आलती पालती मार के सारे बैठे थे दूसरे के घुटने पर हाथ रख के, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ सही, ये सहारा देना, मैं बैठा हूँ तुम्हारे साथ, मैं बैठा हूँ। हर इंसान हर शख्स यही यादें। अच्छा जवेरिया को क्या कहें, जवेरिया के माइक लो बेटा। जवेरिया को क्या कहते हैं? जवेरिया हमें सबसे छोटी है हमारे पूरे ग्रुप में और सबसे ज्यादा उसको जो है ना वो छेड़ते। डॉक्टर साहबा के साथ वो जो वाकया हुआ था, वो जो आपका सेगमेंट हुआ था, आप बैठे हैं तो आपकी इजाजत से, तो इसी शरारत वाली बात है, लेकिन मेरे भाई के भरी हुई शरारतों से मैं क्या करूं, पूरी शख्सियत मजमुआए शरारत, तो वो शरारत नहीं जिंदा दिली थी। अल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, वो जिंदा दिली जन्नत में जो है ना वो रौनक कर रही है। तो डॉक्टर मिराहिल साहबा का एक सेगमेंट था, तो उसमें था कि शौहर को काबू करने का तरीका सब तरीके सिखा सब। अच्छा अब डॉक्टर मिराहिल ने कह दिया शौहर को काबू करने का तरीका, कहते हैं एकदम छोड़ हैं, मैं सुनो खुदा की कसम सुनता हूँ मैं। अब डॉक्टर साहब बता रही हैं कि इलाज, अच्छा मुझे किसी को कोई लड़का या बच्चा आ जाए, क्योंकि माशाल्लाह जाहिर है कह रही कोई बेटा आ जाए कोई बच्चा आ जाए, तो क्योंकि जाहिर है आदमी को तो मैं नहीं लगा सकती पर्दे का और महरम का वो, तो एकदम से आ गए, अरे मेरी बहन, मुझे बताओ कौन से पॉइंट पे लगाना है। मैंने कहा भाभी देख रही होंगी, कहते तो मैंने सोचा ही नहीं। मैंने कहा भाभी देख, ऐसे ही हुआ था। मैंने कहा भाभी देख रही है ट्रांसमिशन, आपको मालूम नहीं है? कहते हैं मुझे मालूम है, 2 आंखें वहां से देख रही है तो 2 आंखें तुम्हारी शक्ल में मुझे यहाँ पर देख रही है, मैं तो कहीं और देख भी नहीं सकता मेरी माँ। मतलब सफर पे जाएं, ट्रैवल पर जाएं। आखिर जो रमजान से पहले का यूएस से आ रहे थे, यूएस का टूर था ना जो आप लोग, बिल्कुल आप हसान और अमजद भाई कहाँ कौन सिटीज में गए थे? हम लोग गए थे डैलस, ह्यूस्टन और न्यूयॉर्क और तमाम जगह पे। और मुझे वहाँ की एक छोटी सी बात याद आई तो बताती चलूँ कि वहाँ पर हमारी एक शादी में शिरकत थी ना, तो जब बारात जा रही थी तो वो लड़का और लड़की जो थे हेलीकॉप्टर में जा रहे थे। अच्छा मैं बिल्कुल सामने हेलीकॉप्टर, मेरा फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस था, तो मैं जाके ना सामने खड़ी हो गई बिल्कुल। अब अमजद भाई कह रहे हैं, अम्मी और अमजद भाई पीछे खड़े हुए थे, तो अमजद भाई कह रहे हैं ये इतनी आगे खड़ी है, इसको बुला लेना। तो अम्मी ने आवाज दी, मैंने कहा नहीं मैं यही खड़ी हूँ, मैं देख रही हूँ। अब मैं खड़ी रही, अमजद भाई पीछे अपनी शॉल लेके ना ऐसे खोल के खड़े थे पीछे। अमजद भाई ने कहा अभी आएगी भागती हुई, इसको पता नहीं है हेलीकॉप्टर की हवा कितनी तेज होती है। वो जैसे ही हेलीकॉप्टर उड़ा है वो हवा से पीछे धकेलती हुई खुद उल्टी भाग रही थी। तो वो शॉल खुली हुई थी, उन्होंने ऐसे करके मुझे लपेटा है शॉल में और कहा देखा मेरी बच्ची, मुझे पता था इसकी यही हालत होगी। और उन्होंने अपनी शॉल में मुझे पूरा वो कर लिया। और फिर गाड़ी में भी वो हम लोग गए तो उन्होंने कहा कि नहीं अब अपने पास रखो, अब तुम्हें ऐसी हवा लगी कि कल तक सही नहीं होगी तुम। और उन्होंने मुझे पूरा दिन, और उनको इतनी सख्त सर्दी भी लग रही थी,
کوئی اور چیز نہیں تھی ان کے پاس اس شال کے علاوہ، لیکن انہوں نے کہا نہیں اب تمہاری طبیعت خراب ہو جائے گی، میں تو برداشت کر لوں گا۔ وہ ہاتھ، پہنچ گئے شال، پڑھتے ہوئے درود مدینے پہنچ گئے، کب کب یاد نہیں کریں گے ہم جب ہے فلا مدینے یہ باتیں، کتنی باتیں، کتنے لمحات ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں بھائی مجھ کو، آپ بتا سکتے ہیں کہ میں ان کی ایکشن سے، ان کی اداؤں سے واقف، ان کی نظر، آپ جان سکتے ہیں میرا تو کوئی خون کا رشتہ نہیں تھا۔ میرا خیال یہ کہ ویک میں کم سے کم 2-3 دفعہ بات ہوتی تھی، ایسا کر دیں، ویک میں 2-3 دفعہ میری بات ہم جس سے ضرور ہوتی تھی کم سے کم، دنیا میں چاہے وہ کہیں پر بھی ہوں، میں کہیں پر بھی ہوں۔ میرا نہیں خیال ہے کہ شاید ہی کوئی ایسی بات ہوئی جس میں تمہارا تذکرہ نہیں آیا۔ اللہ، یہ میں بتا رہا ہوں۔ آپ لوگ کہاں پر ہے، کس سے فون، کس سے بات ہوئی، کس سے بات نہیں ہوئی۔ میری جو ہے نا، میری اس فیلڈ میں ایک ہی بہن ہے بس۔ کہتے گھر پہ کتنی بہنیں، بہنوں کا کس کا، سب کا نام بتائیے گا؟ ماشاءاللہ 6 بہنیں، 6 بہنیں، سب سے بڑی فریدہ باجی، پھر شاہین باجی، پھر روبینہ، پھر شازو، پھر عالیہ، پھر سائمہ، سب گھر پہ۔ کہتے ایک 7ویں بہن یہاں بیٹھی، وہ یہ کہتا تھا، یہ اللہ اس کے درجات کو بلند کرے۔ آمین ثم آمین۔ میرا آپ لوگوں سے رشتہ، اور ہم سب کا، لیکن میرا آپ لوگوں سے رشتہ بناوٹی نہیں ہے، ٹی وی کا نہیں ہے۔ وہ بڑی بات کہہ دی اماں آپ نے، لیکن میرے بھائی، ہمیں تو لگتا ہے کہ امی نے آپ کو کسی کو نمک کے بدلے میں دے دیا کسی اور کو، کہ بھئی 1 کلو نمک دے دو اور اس کو لے جاؤ، یہ میری بیٹی ہے لیکن اسے لے جاؤ بچپنے میں۔ ہم 7 ہی بہن ہو گئی ہماری، ماشاءاللہ۔ ہم نے کہ منہ سے رمضان کے مہینے ہم محبتیں بہت ساری چھوڑ گئے، ہمارے ساتھ رہے گا۔ بہت امجد صابری شہید ایوارڈ کی طرف